Coder 404. Before we get into the real content of the video, let me talk a little more about myself. So basically, I'm a full stack product engineer working with Udaan since past 3 years. मैंने अपना जर्नी 2016 में स्टार्ट किया था विद कोवियम, अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप. ये एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट थी मेरे लिए, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैंने 2.5 से 3 साल काम किया. उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो स्विच था, इट वाज मिड साइज कंपनी कॉल्ड पेटीएम. वहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 साल काम किया. देन आई मूव्ड ऑन टू उड़ान एंड आई एम विद उड़ान सिंस देन. सो मेरा एक्सपीरियंस मोर और लेस स्टार्टअप कल्चर में ही रहा है. द रीजन आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल इज बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट द फैन कंपनीज आउट देयर बट वेरी लिटिल अबाउट स्टार्टअप. सो आई एम प्लानिंग टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ what to expect in a startup. For example, your CTC out there, different perks that you'll be getting, and the work culture, work environment, the learnings that you'll have on the way, the job stability. So इस वीडियो में मैं अपना फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इन अ स्टार्टअप इकोसिस्टम बैक इन 2016. टू गिव सम बैकग्राउंड, मैंने MCA किया हुआ है फ्रॉम VIT यूनिवर्सिटी वेलोर. वो एक 2 साल का कोर्स है और VIT एक डिसेंट इनफ कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. मतलब वहाँ पे फैन कंपनीज आती है एंड स्टार्टअप्स आती हैं, MNCs तो आती ही है, एंड देन मास कंपनीज भी आती है. सो अपॉर्चुनिटी वाइज में बहुत डिसेंट कॉलेज था. और मैंने 2 ऑफर क्रैक किया था. वन वाज फ्रॉम कोवियम, अनदर वाज फ्रॉम MAQ सॉफ्टवेयर बेस्ड आउट इन हैदराबाद. तो and also I want to share one of my experience. I was also interviewing for Texas Instrument and उसमें we were 5 people who got selected in the final HR round. There were some 3-4 rounds that happened. उसके बाद उन्होंने 5 बच्चों को shortlist किया था and 4 of them got the final offer except me. So it was a really heartbreaking experience for me. रीज़न बीइंग कि उसका CTC was lot more than I was getting. मतलब अप्रॉक्सीमेटली 13-14 का कुछ CTC था. And the current offer that I had with Covium and MAQ software, it was around 5 to 6 lakh. तो वो एक बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंस था मेरे लिए. बट इफ़ आई हैव टू लुक बैक, आई फील कि वो एक सही चीज़ हुई थी मेरे लाइफ में, एंड बिकॉज ऑफ विच आई थिंक आई एम हियर currently. Now the next question is कि how do I select which company to join? So I started comparing between Covium and MAQ software. तो Covium का तो बहुत ही plain एक website था with very little information of what they were doing, about the client informations, about the products and everything. Whereas MAQ का मुझे अच्छा information मिला था. They had a very good website, उनके Glassdoor reviews भी थे and lot of things. तो when I started comparing, I saw कि भाई MAQ में there were lot of negative reviews also on the Glassdoor in terms of the environment and the workload that was out there. और वहाँ पे मुझे Covium के अराउंड मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला था. तो I thought कि let's go with 0 than the negative one. And also another reason for selecting Covium was कि I wanted to somehow move to Bangalore. 2016 January में I came to Bangalore with my mother. With no expectation because literally this was my first job. So I remember we were walking in a street and we were unable to find the office. So I met a person on the street and asked him, can you tell me where is this company named Covium located? And that person was carrying some 3-4 laptops on his hand. He smiled at me and he said कि आगे से जाके left ले लो, there is a board out there. I followed the instruction. I went there and I saw कि it's a standalone building. कुछ 3-4 फ्लोर का बिल्डिंग था. And I said goodbye to my mom and I went inside. तो मैं जब अंदर गई, I met the same person and he smiled back again. So I then checked with HR. She said that he's the co-founder of the company and I was like क्या चल रहा है. उस वक्त देन फर्स्ट डे हमारा ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हुआ. ऑनबोर्डिंग में हमारी जो डिटेल्स वगैरह लेते हैं, ऑल ऑफ दैट हैपेंड. हमें एक 16 GB का मैकबुक मिला जिसको देख के मैं सुपर एक्साइटेड हो गई कि एटलीस्ट आई एम गेटिंग अ गुड लैपटॉप टू स्टार्ट माई करियर विद. उसको छोड़ के आई थिंक यूजुअली जो आपके T-shirts, बैग्स एंड बॉटल्स, वो सारी चीज़ें जो मिलती है वो हैंड ओवर की गई.
अपार्ट फ्रॉम दैट आई रिमेंबर कि द HR सेड कि आपको कुछ 3 टाइम का खाना विल बी गिवन बाय द ऑफिस. सो आई वाज लिटिल रिलीव्ड बिकॉज बैक देन आई वाज स्टेइंग इन अ PG एंड वहाँ का खाना वाज नॉट रियली वेरी गुड. सो खाना के वाइज में तो इट वाज सॉर्टेड. सो आई थिंक पर्स तो मोरलेस यही था. सो नेक्स्ट हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ जो कि 1 हफ्ते का पूरा रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग था. आई रिमेंबर. सो हम सुबह को अप्रोक्सीमेटली 9 बजे आ जाते थे ऑफिस में. आके हम ब्रेकफास्ट करते थे. डे यूज टू स्टार्ट. हमें घर जाते जाते अप्रोक्सीमेटली 8-9 तो बज ही जाते थे. तो वहाँ पे हमें डिटेल में टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता था एंड कुछ डमी प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स दिए जाते थे. तो वो हम 1 हफ्ते तक चला एंड पोस्ट दैट वी वेर असाइन टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट टीम्स. तो मुझे याद है उस वक्त कंपनी का स्ट्रेंथ कुछ 30-40 लोगों का था और हम इंटर्न से कुछ 12-15 थे. सो दिस वॉज द फर्स्ट बैच फॉर द कंपनी टू हायर फ्रॉम कैंपस. तो आई थिंक दिस हैपेंड. उसके बाद धीरे धीरे हमें रियल टाइम प्रोडक्शन के कोड पे काम करने का मौका मिला. रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स असाइन हुए, टीम्स एलोकेट हुई. स्टार्टिंग का 1 साल तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए. मतलब यू लर्न सो मेनी थिंग्स एंड टू वर्क विथ अ स्टार्टअप विथ सच फ्यू हेड काउंट. आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो. आपको UI करना होता है, बैकएंड करना होता है, डेवऑप्स करना होता है, मॉनिटरिंग करना होता है. तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए एट द सेम पॉइंट इन टाइम इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. इट वाज ओवरवेलमिंग आई वुड से. एंड आई रिमेंबर कि मैं एक आध बार सोचती थी कि शुड आई ज्वाइन एनी MNC बिकॉज दे वर फ्रेंड्स ऑफ माइन हु वाज वर्किंग विद TCS और अदर बिगर कंपनीज जहाँ पे दे वर लाइक कि हैप्पीली अभी तक काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है. 1 साल तो उनका ऐसे ही कुछ माइनर एनहेंसमेंट्स करने में चला गया है एंड ऑल ऑफ दैट. और मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट था. इट वॉज द मोस्ट लर्निंग फेज आई वुड से इन माई लाइफ. काफ़ी चीज़ सीखने को मिला. जैसे जैसे टाइम गया चीज़ें थोड़ी सी स्मूदन आउट होने लगी. मुझे चीज़ें समझ में आने लगी अच्छी तरीके से. टीम को ट्रस्ट होने लगा. सो धीरे धीरे थिंग्स गॉट सेटल्ड अ लिटिल बिट. And that is when I met a very wonderful manager of mine and also the team where they actually guided me so much. मतलब मेरा लर्निंग को उन्होंने नेक्स्ट लेवल तक लेके गया. They trusted me with bigger features, bigger deployments, gave ownership of projects. So it was a very good phase for me, right? उसके बाद आई थिंक मेरे मैनेजर भी मूव आउट कर गए उस कंपनी से. आई थिंक दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2 years फ्रॉम व्हेन आई जॉइन्ड द कंपनी. तो मैंने आई थॉट कि लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग, राइट. मैं भी एक आध इंटरव्यू ऐसे ही दे दी बाहर में एंड आई क्रैक्ड इन्फॉर्मेटिका एंड दैट कंपनी वाज ऑफरिंग मी अराउंड 12 lakhs. And at that point in time, my salary in Covium was around 8.5 or so. So then I was in dilemma कि अब क्या किया जाए. ये तो मतलब easily company crack हो गई. And the reason why I was able to crack this company very easily was because of my learnings. I became so much confident with the different type of technologies I worked with. End-to-end understanding of the architecture of the system. इसके कारण I think job cracking became a little easier for me back then. And also it was a bigger company, so they gave me a decent package from my current salary. And then I actually started thinking कि क्या किया जाए because that amount was something which I could not ignore, of course. तो I sat with my manager and I said कि भाई देखो ऐसा है. And he was sure कि the company is not going to match this salary, but he said कि he'll make some efforts to retain me. तो वहाँ पे he retained me. They didn't give me the exact match, but उससे कम ही मिला मुझे. But I stayed with the company. So the reason why I stayed with the company is because मैंने सोचा कि मेरा CTC डिफरेंस बहुत ज़्यादा है नहीं, right? एंड आज से मैं अगर नेक्स्ट 6 से 12 मंथ्स में भी अगर मैं स्विच करूँगी तो मुझे वो जो हाइक रहेगा वो इस सैलरी पे मिलेगा. तो मेरा ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ CTC ज़्यादा रहेगा. तो ये मेरा एक रीज़न था.
If I have to talk about the technology which I learned there, the system was majorly a microservice architecture. उसमें backend side में I worked with Java, Scala. UI side में React was new at that point, very fancy. तो I also worked with React on few of the projects. DB में आपका रेगुलर पोस्टग्रेस जो होता है SQL, उसको छोड़ के फॉर नो SQL मोंगो पे मैंने काम किया. द कैशिंग वगैरह का भी मैंने सीखा. रेडिस पे मुझे काम करने का मौका मिला. इसको छोड़ के थोड़ा बहुत डिप्लॉयमेंट कैसे होता है वो सारी चीज़ों का भी आइडिया लग गया था. So this was my experience as a college pass out to an SDE transition back in 2016. I tried sharing some of my experience, but if you have any specific things that you want to know from me, do comment down below. I would love to answer that. But apart from this, I think I have planned a lot of other topics that I want to cover in terms of how I chose my second company, what was the percentage increment that I got, how does the transition happen, and also I would want to talk about the roles and responsibilities in my current company, the perks side of things, and the CTC that they are offering. So if you guys want to connect with me, I will pin down the LinkedIn profile of mine. Do reach out to me. Thank you.